तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ. Okay, so good morning everyone. So this is our second class and today we are going to discuss about Mendeley's law and Mendeley's product table, the merits and demerits, and then we will discuss about modern product table, how it came into existence and how modern product table overcomes from the Mendeley's drawbacks. जो modern product table है हमारे पास उसने Mendeley's के किस drawback को overcome करा और ये काम किया. ठीक है, चलिए. Till now, we have studied about Newland's octave law और Newland's octet law. Newland's octet law के बारे में हमने पढ़ा था और उससे पहले we studied about the Dauvergne triad. The Dauvergne triad, in the Dauvergne triad, what was the Dauvergne triad? The Dauvergne did, he classified each and every element in a group of three. He made a group of three elements in which the third element, or you can say the middle element atomic mass, is equal to the average atomic masses of first and the last element. That was the Dauvergne triad, and he find out such three triads. Okay, figure 5.2 in your NCERT is given, so you need to remember that. The drawback for that is that he was not able to explain each and every triad. That all the elements were not able. He could not able to classify each and every element as a triads. Okay. Then after that we have Newland law. Newland law, it explains that after every eighth element repeat its property, like hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, oxygen, carbon, nitrogen, oxygen, and then of every eighth element like hydrogen, chlorine, lithium, sodium, beryllium, magnesium, boron, aluminium, carbon, silicon, it will repeat its property after every eighth element. So this was the Newland's law of octave, and there were so many problems with that we have already discussed. Like it was applicable only up to calcium, position of hydrogen is not clear, and some of the elements were placed in one group and the other elements were placed in different group, like oxygen, sulfur, and iron. So iron property is totally different from that of these two, but it is in that group. Cobalt and nickel is placed in this with hydrogen, chlorine. So again, this is also a question mark that why it is placed so. Okay, so that we have discussed in our last class. Now we are going to discuss about Mendeley's product table, how Mendeleev made that table. Now, what Mendeleev did different things. He studied the properties of oxygen and hydrogen. So Mendeleev examined that the relationship between atomic masses of the element and their physical and the chemical properties. He understands the relationship between the atomic masses of elements and their physical and chemical properties. Basically, Mendeleev studied two compounds, that is oxygen and hydrogen, reaction with each and every element. That is, he studied about the oxides and hydrides of each and every compound. Mendeleev ने करा क्या, जितने भी एलिमेंट थे उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, उसका एक फॉर्मूला बनाया, वो लिखा. देन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, उसका एक फॉर्मूला बनाया और उन दोनों चीजों के बारे में स्टडी करी कि भाई इनकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे क्या रहती है. अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई ही चूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव एंड they form compound with most of the elements at that time. जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, तो इस वजह से उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुना. ठीक है, अब उसने क्या करा, जितने उस टाइम पे अराउंड 63 एलिमेंट्स थे हमारे पास नोन, उसने सबके साथ 63 एलिमेंट्स को अपना पढ़ाई कर ली, उसकी स्टडी कर ली कि क्या क्या होता है, और सबको एक पेज पे लिखना स्टार्ट किया. एक पेज बनाया, सपोज करो हाइड्रोजन का, उस पर लिखा उसका एटॉमिक नंबर, देन उसका एटॉमिक मास लिख दिया. एटॉमिक नंबर तो उस टाइम पे पता ही नहीं था सबको किसी को, तो उसका एटॉमिक मास लिखा, तो उसकी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज लिख दी, भाई इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करे क्या प्रॉपर्टी आती है, देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें लिख दी उसने एक पेज पे. देन फिर ऐसे लिथियम का लिया, बोरोन, बेरिलियम, ऐसे करते करते ही प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ पेज फॉर ऑल 63 एलिमेंट्स. उसमें जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उन सबका एक एक करके पेज बना लिया. ठीक है, अब उसने क्या करा, इन पेजेस को
अपने घर में एक वॉल थी उसकी बहुत बड़ी, उस वॉल पे लगाना शुरू करती है इन पेजेस को, ठीक है, एज पर द प्रॉपर्टी। जब उसने ये सारे के सारे पेज लगा दिए तो उसने दो चीजों को ऑब्जर्व किया। When he put each and every page over the wall, he observed two things. First thing, that each and every element, whatever he placed, are as per the increasing atomic masses. पहली बात क्या ऑब्जर्व करी कि जितने भी उसने ये पर्चे लगाए, ये सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में आ गए हैं ऑटोमेटिक। और एक थोड़े टाइम के बाद में देयर इज रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। Again repeating, he observed two things. If you have your NCERT right now, just open page number 82. 82 में last line देखिए क्या लिखा है। On the basis of Mendeleev formulated a periodic table, और उससे पहले क्या लिखिए, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. That was the first observation. And second, he observed that there occurs a periodic reoccurrence of element. Periodic reoccurrence means that after a certain interval, that similar physical and chemical properties of elements were repeated. Reoccurrence means वो बार बार repeat होती हैं एक certain interval के बाद। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो बेशक फटाफट अपने साथ में। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए कि what were the observations of Mendeleev? What were the observations of Mendeleev after when he pinned, after pinning of cards together on the wall? What were the Mendeleev observation? Just write down question. What were the Mendeleev observation after the pinning of cards together on the wall? Clear? Or you can simply say, what were the observations based on which Mendeleev gives Mendeleev's periodic law? What were the observations based on which Mendeleev gives Mendeleev's periodic law? ठीक है। सो अब इसके बाद में उसने क्या देखा, द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म विद दीज एलिमेंट, उसने फॉर्मूले बनाए ऑक्सीजन हाइड्राइड का एंड रिगार्डेड देम एज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। ओके जी। सो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे उसने दो ऑब्जर्वेशन पढ़ी। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स थे दे वर ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। So based on these two observations, he gave a Mendeleev periodic law, which states that physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic masses. उसका मतलब क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी हो या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक मासेस पे। These all are the periodic function of atomic masses. वो फटाफट थोड़ी देर बाद अपने आप रिपीट होती रहती है एज द एटॉमिक मासेस इज चेंजिंग, और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता रहता है एक सर्टेन इंटरवल के बाद में वो प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट कर लेती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? यश, सौरभ, देवम, आर्यन, अक्षता, इज दैट पॉइंट क्लियर? किसी को कोई डाउट आया अब तक इस पूरी स्टोरी के अंदर? नो सर। ठीक है, चलिए। अब ये इसने टेबल बनाई, कुछ इस तरीके से इसने टेबल रखी थी। अभी आपको हम टेबल दिखा देते हैं। ये है टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप्स आए इसके अंदर, और हर एक ग्रुप को उसने ए बी ए बी ए बी करके सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। सो ही मेड 8 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप लाइक ए एंड बी, ए एंड बी। बस 8 ग्रुप था वो ए बी सी 3 में डिवाइड था। ठीक है। अब इसकी खास बात देखो, जितने भी ग्रुप्स थे उसमें उसने सबसे पहले ऊपर उनके ऑक्साइड का और उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला दिया। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनमें से किसी चीज को भी उठा लो,
फॉर एग्जाम्पल आप लिथियम उठाओ, तो लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो फॉर्मूला Li2O बनेगा और LiH बनेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पे। अब कार्बन उठा के देखो, CO2 CH4, सिलिकॉन उठाओ SiO2 SiH4। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फॉर्मूला ये बनेंगे। तो हर एक एलिमेंट के ऑक्साइड्स के और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले को उसने बेस माना। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द बेस ऑफ Mendel's periodic table, so Mendel's periodic table base is the oxides and hydride property। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? यस सर। चलिए, अब एक चीज और देखो, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक गैप है, ये एक गैप है और एक ये वाला गैप है। 44, 68 और 72 इन तीन में गैप है। एक बोरोन के बाद गैप आता है, एक एल्यूमिनियम के बाद गैप आया और एक सिलिकॉन के बाद गैप आया। सो मेंडलीफ ने क्या करा, उस टाइम के अपने जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उनको एक पीरियोडिक टेबल में लगाया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को उसने ग्रुप्स नाम दिए। जो वर्टिकल कॉलम आया उसको उसने नाम दिया ग्रुप, जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी उसको नाम दिया उसने पीरियड। तो टोटल मिला के उसने 8 ग्रुप बनाए which were divided into AB subgroups, and there were total 6 periods, and 6 periods में से 4, 5, 6 periods were divided into first and second series, first and second series, और जो 6 पीरियड था वो की इनकम्प्लीट था। तो ये उसने टोटल काम किया, एंड ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसने कुछ गैप को रखा अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहला प्लस पॉइंट की अगर बात करते हैं वो आते हैं गैप। इसमें क्या करें, ये गैप रखने शुरू करें अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, अब ये गैप से क्या मतलब बना, क्यों रखे थे, इसमें फायदा क्या हुआ और उसने क्या सोचे गैप रखे। इसने देखा कि जब बोरोन करा मैंने, कार्बन फ्लोरीन ऑक्सीजन कर दिया, उसके बाद मैंने उसने ये फ्लोरीन ये लगाया, देन फ्लोरीन के बाद सोडियम लगाया, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन आप देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम से लेकर टाइटेनियम, इसके बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा आ रहा है। देखो तो आप 40 से लेकर 48, तो 8 एटॉमिक मासेस का गैप आ रहा है। तो उसको कुछ गड़बड़ लगी कि भाई नहीं, कुछ तो पंगा है, इसके अंदर एक आधा एलिमेंट और आना चाहिए। तो उसने क्या लिखा, एक गैप रख दिया और इस गैप का नाम रखा एका बोरोन, AEKA, एका बोरोन। ठीक है, इसने 44 की जगह पे नाम रख दिया एका बोरोन। सिमिलरली 68 पे नाम रखा इसने एका एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम और ऐसे ही 72 पे नाम रखा एका सिलिकॉन। सिलिकॉन। ठीक है, तो इसने 3 गैप बनाए। अब एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ 3 गैप, बट एक्चुअल में इसने 7 या 8 गैप बनाए थे, जो कि आज तक डिस्कवरी नहीं हो पाई उन गैप्स की। ठीक है, बट एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है, यू हैव टू लर्न ओनली दीज 3 गैप्स। अब एका बोरोन था जो कि आगे जाके डिस्कवर हुआ और बना वो स्कैंडियम, SCANDIUM, स्कैंडियम के नाम से। ठीक है, एक का एल्यूमिनियम बना आगे जाके गैलियम, गैलियम जिसका था सिंबल Ga, और एक आया फिर एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। बना जर्मेनियम। तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा। द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज दैट इसने गैप छोड़े थे। इन गैप में उसने सबका नाम एका बोरोन, जो बोरोन के बाद था एका बोरोन, जो एल्यूमिनियम के बाद था उसका नाम एका एल्यूमिनियम, और जो सिलिकॉन के बाद था उसका नाम एका सिलिकॉन रखा। एका बोरोन बन गया क्या हमारे पास गैंडियम, एका एल्यूमिनियम बना हमारे पास में गैलियम, गैलियम और सिलिकॉन वाला बना हमारे पास जर्मेनियम। तो ये जर्मेनियम। 3 चीजें बनी। ठीक है, पहला पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट, ये जो बोरोन है, बोरोन का जो एटॉमिक मास है और बेरिलियम का एटॉमिक मास है वो इससे पहले की टेबल में गलत दिए हुए थे, तो उसने इनके एटॉमिक मासेस की करेक्शन करी। ठीक है, और जो एलिमेंट थे आप देख सकते हो आयरन वगैरह को इसने अलग प्लेस कर दिया। तो इसमें ये सब चीजें प्लस पॉइंट इसके थे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट था मेरिट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। सो he arranged each and every element systematically so that it can be studied easily. Fine. Second point, correction of doubtful atomic weight.
जैसे कि डाउटफुल एटॉमिक वेट हमारे पास बोरोन था, ये पहले 13 पॉइंट समथिंग होता था, उसको उसने सॉरी बेरिलियम का था 13 पॉइंट समथिंग होता था, उसने इसको करेक्ट करके 9.1 के आसपास कर दिया. So he corrected some of the doubtful atomic weight in its own periodic table. ठीक है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट. मैंने आपको बता दिया कौन कौन से न्यू एलिमेंट इसने प्रिडिक्ट करे थे. एक का जो गैप छोड़ा उसने, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, एंड देन एक एक का का सिलिकॉन। सिलिकॉन. ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रखना. एंड फर्दर ऑन दे वर डिस्कवर्ड एज अ स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. जर्मनी। ओके. देन फोर्थ पॉइंट था पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस. अब मैंडलीफ के टाइम पे दीज नोबल गैसेस आर नॉट डिस्कवर्ड. और वो क्यों डिस्कवर नहीं हुई थी, उसका मेन कारण था कि नोबल गैसेस आर प्रेजेंट एट वेरी लेस क्वांटिटी एंड दे आर नॉन रिएक्टिंग, दे आर इनर्ट, नॉन रिएक्टिंग एंड दे आर इनर्ट. तो उनके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी और डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अबाउट दैम, क्योंकि एक तो पहले से कम मिलती हैं और कम मिलने के बावजूद ये रिएक्शन बड़ा कम करती है. जब कोई चीज रिएक्ट नहीं करेगी तो उसके बारे में पता कैसे लगाओगे कि भाई ये चीज होती भी है. तो इसलिए पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस के बारे में उन्होंने नहीं बता पाए थे, पर उसको पता था कि ऐसा कुछ होगा जरूर. तो उसने क्या बोला था कि भाई यहाँ पे एक और ग्रुप बनाना, जीरो ग्रुप करके, और इसमें नोबल गैसेस को लिख देना. जो आपकी एंटायर टेबल होगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यू कैन पुट नोबल गैसेस इन दिस टेबल. कि बाकी की टेबल को कुछ बिना डिस्टर्ब करे आपकी पूरी की पूरी नोबल गैसेस यहाँ पे इस टेबल के अंदर आ जाएगी. तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चार के चार पॉइंट है. ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर द मेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल. क्लियर है ये वाली बात सबको? चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। लक्ष्य, सौरभ, आर्यन, देवम, अक्षता, इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया. अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की. लिमिटेशंस क्या क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. अब ये जो हाइड्रोजन इसने यहाँ पे पुट कर दिया सोडियम पोटेशियम क्रोमियम के साथ में, इससे पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पे पुट क्यों किया है, इसके बारे में बताओ. तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई व्हाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज दिस वन. कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन क्लोरीन क्लोरीन के साथ क्यों नहीं है, उसके बारे में इसके पास में कोई आंसर नहीं था. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप. अब आइसोटोप क्या थे? आइसोटोप आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट With different atomic mass but वे, same बता रहा reason. हूँ बेटा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर. जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है पर उनका एटॉमिक नंबर सेम है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, डिटीरियम एंड देन ट्रिटियम, या फिर कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया. और एग्जांपल देखो, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. 37. तो ऐसे ऐसे करके काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिनके की आइसोटोप्स होते हैं. पर इस टेबल, अब ये टेबल का मेन पर्पस क्या था, टेबल का मेन बेस क्या था? भाई एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एज पर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो तीनों का आता है, क्लोरीन में दोनों का बनता है. पर कहाँ है इनकी पोजीशन? सिर्फ एक हाइड्रोजन दे रखा है भाई ने, सिर्फ एक ही जगह पे क्लोरीन दे दिया उसका एटॉमिक वेट ये बना के. ऐसा क्यों करा है? व्हाई इट हैज बीन देयर, वेयर इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप? इसके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. नाउ what you have to write, as the table is based on increasing order of atomic masses, but the isotopes positions were not given, and he was not able to explain about their positions also, कि why isotopes are not there in its periodic table. तो ये पंगेबाजी हो गई. ठीक, चलो जी कोई बात नहीं. तो लिमिटेशन. अब आ जाओ थर्ड लिमिटेशन, एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट्स. अब कोबाल्ट और निकल. अब कोबाल्ट का मास होता है 58.9 और निकल का मास है 58.7. निकल का मास आपको दिख रहा है कम, तो निकल शुड बी प्लेस्ड बिफोर इट.
ये देख लो, आयरन के बाद में कोबाल्ट आया, निकल आया, आयरन के बाद में कोबाल्ट है, इंक्रीमेंट हुआ एटॉमिक वेट का, उसके बाद यहाँ देख लो डिक्रीमेंट हो गया। ये क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों, वाई इट इज सो, ये चीज क्यों है? इसके बारे में उसके पास कोई रीजन नहीं था कि भाई निकल बाद में क्यों है, कोबाल्ट पहले क्यों है। So he was not able to explain about the shifting. कहता है कि जी सारी की सारी टेबल क्या एटॉमिक नंबर के इंक्रीमेंट पे बेस्ड है, सॉरी एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट पे बेस्ड है, पर यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर गाइस? Yes, sir. ठीक, अब ऐसे यहाँ पे देखो जरा, ये टिन है 120, देन उसके बाद में टेलिनियम आया 127, देन उसके बाद में आयोडीन आ गया 126। ये क्यों हो गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में नहीं बता पाया। तो एक पेयर मिल आपको मिले निकल और कोबाल्ट का, एक पेयर मिल गया आपको टिलेनियम और आयोडीन का। ठीक, क्लियर हुई बात ये? तो इस Yes, तरीके sir. से आपको ये दो पेयर मिले, इन दोनों पेयर के अंदर क्वेश्चन मार्क था कि भाई ये ऐसे क्यों रखे गए, इनके पीछे का रीजन क्या था, उसके बारे में वो बता नहीं पाया। तो इन्हीं 3 पॉइंट को देखते हुए मेन पंगेबाजी, इन्हीं 3 पॉइंट की मेन पंगेबाजी की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स मेंडलीज रेट टेबल वर पुट इन ए क्वेश्चन मार्क, उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखा जाने लगा कि भाई ये ठीक भी है या नहीं है, ये इसने ऐसे क्यों बता दी ये चीजें, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद आती है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की डिस्कवरी कैसे हुई, अब ये पहले स्टोरी सुनो एक बार। ये जो हेनरी मूजले साइंटिस्ट, इनके टाइम तक आते आते थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट वो किसी ने प्रपोज कर दिया। ठीक है, इससे पहले मेंडलीव के टाइम पे एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि एटॉमिक नंबर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, ज्यादा के बारे में उनको नहीं पता था, पर थोड़े टाइम बाद एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट किसी ने प्रपोज करा साइंटिस्ट ने कि भाई ऐसे ऐसे एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं उसके बारे में बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ये प्रपोज कर दिया किसी साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब ये जो हेनरी मूजले था, इसके साथ 2-3 साइंटिस्ट और थे, ये लोग स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको याद है क्लास 9 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, Yes, जिसमें ma'am. अल्फा Yes. रे से स्टडी करते थे एलिमेंट की स्ट्रक्चर की, सेम ऐसे ही ये लोग स्टडी कर रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ अल्फा रे इनके पास थी इस बार एक्स रे। ये एक्स रे की मदद से एलिमेंट के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे और कुछ अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे थे। अब जब ये पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर रहे थे, तब इन्होंने पाया कि जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और उसके बाद एक डिस्कवरी और इन्होंने क्या करी कि जितना भी एलिमेंट हैं उनकी जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी होती है दैट इज मोर क्लियरली कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन हम लोग उसके एटॉमिक नंबर से ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ना कि उसके एटॉमिक मास की वजह से। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो ये इन्होंने फाइंड आउट करा अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसी चीज को बेस बनाते हुए इन्होंने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number। तो जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो सारी की सारी पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज का, उनके एटॉमिक नंबर का। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है बात, ये वाली बात समझ में आ गई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, दैट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर में भी बेसिकली इन्होंने रखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये जो पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ये डिपेंड थी किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड होता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी टेबल को बनाया, और जो टेबल थी वो कुछ इस टाइप की निकल के आई। आप देख सकते हो इन्होंने जो टेबल बनाई उसके अंदर इन्होंने 18 ग्रुप्स रखे, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 रखे सारे के सारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको दिया इन्होंने ग्रुप का नाम, और इसी तरीके से इन्होंने रखे 7 पीरियड। तो 18 ग्रुप आए हमारे पास, और 7 पीरियड्स में इन्होंने पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया, और दैट इज एज पर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट। yes, ओके जी। अब आप देखो इसके अंदर एटॉमिक नंबर में करा, अब इन्होंने क्या पाया कि भाई आफ्टर सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। अब जरा ये देखो 2 8 8 32 32, 32, 32, 32, ये भी कितनी आ रही है? 32, 32 आया, ठीक है। जरा यही देखो 2 8 8, ये 18 आया, सॉरी ये 18 आया, 32 नहीं है, ये 18 है। 2 8 8 18 एंड देन 32 32, यही हमारे पास में क्या बनता है? वो भी 18 आएगा, पीरियड 6 भी। ये 18 है, 30 इसमें 18 ऐड करेंगे ना, 18 ही आ रहा ना ये। 2 8 18 18 आएगा, एंड देन 32 आएगा, 32, हाँ yes, ठीक है। 2 8 18 32 ये आया। तो इसी तरीके से हमारे पास में, आपके पास में देखोगे तो एलिमेंट का ये बनता है 2 8 8 18। हम लोग जो वो बनाते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ इसी तरीके से बनाते हैं लगभग, तो ये भी कुछ कुछ उसी तरीके yes, से आ रही है आपके सामने, ठीक है। तो ये जो 2 8 8 18 13 है, इन्हें बोलते हैं लोग मैजिक नंबर। तो इससे आप याद भी कर सकते हो इन सबके एटॉमिक नंबर के बारे में। अब देखो फटाफट, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? सिंपल 1। लिथियम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 2 3 2 1, 2,1। सोडियम का 281। पोटेशियम का कितना आता है? 2 8 8 1, 881। अब अगर आप इन सबको देखते जाओगे ऊपर से नीचे तक, इन सबका जो लास्ट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम है। यू कैन क्लियरली सी द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप। पहले ग्रुप में देखो सबका 1, दूसरे ग्रुप में देखोगे सबका 2, यहाँ पे देखोगे सबका 3 4 5 6 7 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज सेम। outermost electronic configuration of each and every element from top to bottom in a particular group is same। ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, हाँ या ना? सबको देखने को आ रही है ऑब्जर्वेशन। बेरिलियम का देखो 2 4 एटॉमिक नंबर 2,2, ये 282 2882। तो इस तरीके से सारे आएंगे बाकी, और 2,3 283 28883। तो इस तरीके से ये गैलियम बना। यहाँ पे देख लीजिए 2,4 2,4 2,4 284 2884। इस तरीके से आपके सारे बनेंगे। तो 13 14 15 16 18 सारे जितने भी ग्रुप है 1 से लेकर 18 तक के में, उनमें ऊपर से नीचे तक जाओगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबकी सेम मिल रही है। ये बात सबको क्लियर हो गई इस बात को, हाँ या ना? yes, sir, अगर आपको क्लास 9th याद हो तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस शेल को बोलते हैं electron, हम लोग वैलेंस शेल। वैलेंसी नहीं बोलते इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी अलग चीज होती है, वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो बाद में पढ़ेंगे अभी हम। तो इसने क्या देखा कि इसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनके इसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेम करा, और उनको उनकी उसमें सीक्वेंस में रखता चला गया। पहले उसने हाइड्रोजन देखा, 1 है रखा, फिर 2 1 लिथियम रख दिया, फिर सोडियम रख दिया, फिर पोटेशियम रख दिया, फिर उसके बाद में रूबिडियम रखा, सीजियम रखा, फ्रेंशियम रखा। और ऊपर से नीचे तक बस देखा गया कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले गए। आप देख सकते हो हाइड्रोजन में 1 ही शेल है, लिथियम में 1 और 2 शेल, सोडियम में
3 शेल, पोटेशियम में 1 2 3 4 शेल, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ शेल पीरियड्स के बारे में बताता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसने ये काम करना स्टार्ट करा। अब एक काम करो, फटाफट दोबारा से इसी मीटिंग को, सेम मीटिंग को ज्वाइन करो जरा एक बार, क्योंकि ये मीटिंग Yes, sir. बंद होने वाली है। फटाफट इसी मीटिंग को ज्वाइन करो, ठीक है? थोड़ी देर और पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं। जल्दी से इसी मीटिंग को ज्वाइन करो। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो हाइड्रोजन की बनी 1, ठीक है? लिथियम के बारे में बना 2,1, सोडियम की अपने पास आ गई 2,8,1, देन पोटेशियम की आई हमारे पास 2,8,8,1। तो इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी आगे आगे बढ़ती चली गई। इसमें नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास बढ़ते चले गए। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है क्या, कि नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड। ये बात आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड। ओके जी। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अगर आप उठा के यहाँ पे बेरिलियम का देखते हैं तो बेरिलियम का 4 है, 2,2, 2,8,2 आता है। कैल्शियम 2,8, कैल्शियम 2,8,8,2 इस तरीके से आता है। बोरोन में उठा के देखें 2,3, एल्यूमिनियम 283, 2,883। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट में इफ यू सी जितने भी ग्रुप्स होते हैं, हर एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम there is same electronic configuration. What we will observe that in each group from top to bottom, outermost electronic configuration remain same. ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें हर एक में सेम रहती है। ठीक है, तो ये इसमें एक बड़ी ही जबरदस्त चीज फाइंड आउट करी थी कि भाई आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। ठीक है, अब एक बात आपको याद हो, चलो अब एक पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या पॉइंट था हमारे पास में, अगर आप लोगों को याद हो पीरियोडिसिटी पॉइंट, द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट with similar properties after a certain regular interval when the elements are arranged in order of their increasing atomic number is known as periodicity। मतलब कि एक certain interval के बाद में जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीटेशन करते हैं जब भी उनको हम एटॉमिक नंबर के या फिर यू कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हम लोग उनको लगाते हैं। यही सेम चीज के बारे में अगर देखा जाए तो न्यूलैंड ने भी बात करी थी। ठीक है, न्यूलैंड ने अपनी प्रोडक्ट टेबल के अंदर बात की, न्यूलैंड प्रोडक्ट टेबल में ये था। देन उसके बाद मैंडलीफ अंकल, उन्होंने भी बात करी। देन इसके बाद में आई मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, उसने भी बात करी। ठीक है, तीनों के तीनों बात करते थे किसके बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, सॉरी मैंडलीफ और न्यूलैंड, इन्होंने बात करा पीरियोडिसिटी when elements are arranged in order of their increasing atomic mass। एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट के साथ पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व होती थी। पर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कहता है एटॉमिक नंबर के साथ पीरियोडिसिटी, इंक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर के साथ ये पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हो रही है। तो ये दो डिफरेंस देखने को मिले, पर दोनों ने बताया जरूर कि भाई पीरियोडिसिटी, ये तीनों के तीनों बताते जरूर है कि भाई पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हो रही है। जब इन दोनों से पूछा गया, मैंडलीफ से एंड न्यूलैंड से, कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पीरियोडिसिटी, तो वो बिल्कुल एकदम चुप, कोई जवाब नहीं था उन पर, नील बटे सन्नाटा। दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द पीरियोडिसिटी कि व्हाई दिस पीरियोडिसिटी इज हैपनिंग। पर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूजले से पूछा गया, भाई अंकल जी बताइए जरा फटाफट आप, ये पीरियोडिसिटी क्यों होती है, तो उनके पास इस बात का आंसर था that this periodicity is because of the repetition of properties of element। This periodic repetition of element is because of the reoccurrence of similar valence shell outermost electronic configuration। अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, इनकी सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1 1 1 1 1,
यहाँ पे 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ओनली नंबर ऑफ शेल्स वर इंक्रीजिंग पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जितने भी एलिमेंट होते हैं इनमें periodicity ऑब्जर्व करी जाती है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कि अल्कली मेटल दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द NF1 छोड़ो, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। उनके शेल के अंदर फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल के अंदर, so therefore they have similar properties. So Mendeleev first gave about the idea about how these periodic properties are there, why this periodicity happens. So Mendeleev कह रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ये आइडिया लगा कि भाई ये periodicity किस तरीके से होती है और इसका कॉज क्या है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई बात? चलिए जी, अब इसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं ग्रुप 1 इस पॉइंट पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये जो ग्रुप 1 है, इस ग्रुप 1 का नाम होता है, ग्रुप 1 का नाम है हमारे पास में अल्कली, ALKA अल्कली मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल्स क्यों है? बिकॉज दे आर बेस फॉर्मेशन, इनकी जो ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, तो ये बेस फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इनको बोल दिया अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों? पहली बात, एक तो अल्कलाइन किस वजह से, ये बेस फॉर्मेशन होते हैं, ये केवी क्या बनाते हैं, बेस फॉर्मेशन होता है इनका, इनकी ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, और ये सारे के सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो देयरफॉर दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, देन इसके बाद आता है ग्रुप 11। ग्रुप 11 को बोलते हैं हम लोग कॉइनेज ग्रुप, बिकॉज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, ये कॉइन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रुप 15, नाइट्रोजन है, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोल देते हैं, या फिर इसका एक नाम और आता है निकोजन। निकोजन को पी से शुरू करते हैं, PNICOGENS, निकोजन। अब इसका नाम निकोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सफोकेटिंग होते हैं, ये सफोकेशन पैदा करते हैं। जैसे इनके आसपास ये एलिमेंट अगर एयर में आ जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है, तो सफोकेशन होता है निकोजन, इसलिए इसका नाम दिया जाता है। देन ग्रुप 16, इन्हें बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इसका नाम होता है चैल्कोजन, CHALCOGEN, चैल्कोजन। चैल्कोजन क्यों बोलते हैं? ये होते हैं ओर फॉर्मेशन, जितने भी ओर्स होते हैं वो जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड इनकी फॉर्म में मिलते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया चैल्कोजन। देन आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को बोलते हैं हम लोग हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और ये बहुत काफी सारे सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए इनका नाम हेलोजन हो गया। उसके बाद आता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 को बोलते थे, वैसे तो इनका नाम नोबल गैस हो गया, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक, पर नोबल गैस, इनर्ट गैस आजकल इनका नाम इतना ये चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर नाउ नॉट नोबल, नॉट इनर्ट। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इनके बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिलते गए हैं, तो इसलिए इनको हम लोग आजकल बोलते हैं एरोजन, AEROGEN, एरोजन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो एयर में प्रेजेंट होते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एरोजन्स बोल देते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमारी ये कुछ ये वाली बातें रही, इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के नाम है, ये आप लोग इनको याद कर लीजिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड या NTSC इनमें कुछ भी कभी और आपसे ये पूछ लेते हैं कि किस ग्रुप का क्या नाम होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देन अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ग्रुप 1 एंड 2। ये जो ग्रुप 1 एंड 2 है इनको बोलते हैं हम लोग S ब्लॉक। देन ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आता है, इनको बोलते हैं हम लोग D ब्लॉक। अब इन्हें S ब्लॉक और D ब्लॉक क्यों बोला जाता है?
ये हम लोग क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे थोड़ी अलग तरीके से। उसमें एक सबशेल का कंसेप्ट आता है कि शेल के अंदर भी एक पार्ट होते हैं सबशेल। तो जिस सबशेल में जाता है इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एंटर करता है, उसी उसको उसका ब्लॉक बोला जाता है। तो हमारे पास एस पी डी एफ करके 4 सबशेल होती हैं, तो इसी चक्कर में उनके ब्लॉक आए। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक आ गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे 56 पेरियम के बाद में सीधा 72 आया। सेम ऐसे ही 88 के बाद में देखेंगे सीधा 104 आता है। तो यहाँ पे 57 का मतलब लेंथेनम, लेंथेनम के बाद जितने भी थे उनको बोलेंगे हम लेंथेनाइड। ये आता है एक्टिनम 89, 89 के बाद में जितने भी थे उनको बोलेंगे हम लोग एक्टिनाइड। और ये दोनों भी दोनों होते हैं एफ ब्लॉक। इसका मतलब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन एफ सबशेल। व्हाई? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल। तो ये चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है। पढ़ते हैं पढ़िए, नहीं समझ में आता इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ मोटा मोटा डिवीजन हुआ हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ये हमारे पास एफ ब्लॉक आया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेंडलीव जो था, मेंडलीव के हमारे पास सबसे मेन 3 पंगेबाजी क्या थी? पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, और तीसरा पॉइंट था एनालोमस बिहेवियर, एनालोमस पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल। अब क्वेश्चन आता है हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन इज हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल overcome Mendeleev ड्रॉबैक या मेंडलीव लिमिटेशन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की जो ड्रॉबैक थे या मेंडलीव की लिमिटेशन थी, इसको ओवरकम किस तरीके से करा। अब देखो, पहला पॉइंट सबसे पहले हमारे पास था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन ये दी हुई है। अब ये जितनी भी पोजीशन थी ये किस चीज पे बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। नो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, outermost electronic configuration is 1, which is similar to lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So therefore hydrogen is placed in group 1। वो लिथियम के साथ और सोडियम के साथ में प्रेजेंट है। तो इसने इस बात पे इस चीज को एक्सप्लेन करा कि भाई एज these positions are based on electronic configuration and the electronic configuration of hydrogen is similar to that of the lithium, sodium, potassium and other elements of group 1. So therefore hydrogen is placed with group 1, not with the group 17 like chlorine, fluorine, bromine etc. ठीक है, चलिए जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। नाउ आइसोटोप Mendeleev table was depending upon the increasing order of atomic masses, but now this modern periodic table depends upon atomic number, and for each and every isotope atomic number is same. If atomic number is same, then why to put it again and again? You can't put na, for one element you can put only one time because of its same atomic number. So therefore criteria of putting isotopes or giving position to each and every isotope is now not more a question. So एक एलिमेंट का एक ही तरीके से आएगा। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से तो हाइड्रोजन को एक ही बार लिखा। सेम ऐसे ही क्लोरीन के साथ देखा जाए, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से एक ही बार क्लोरीन आया, एक ही बार कार्बन आया। So each and every element is placed only one time. तो सेकंड वाला जो ड्रॉबैक था वो भी क्लियर हो गया। अब देखो फटाफट थर्ड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक में था हमारे पास क्या? कोबाल्ट एंड निकेल की पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब ये जो टेबल है, ये टेबल किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज मोर देन दैट ऑफ द कोबाल्ट। तो इस वजह से इनकी जो उल्टा सीधा पोजीशन था वो ठीक हो गई। उसके अलावा हमने क्या देखा था? एक और पंगेबाजी पोजीशन ये किसकी थी? ध्यान से देखो तो ये आयोडीन और टेलेनियम की। जरा यहाँ पे देखिए इनकी पोजीशन एक बार फटाफट। 52 एंड 53
नाउ दीज आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, तो इनकी पोजीशन भी ठीक हो गई। कोबाल्ट एंड निकल था, इनकी पोजीशन भी ठीक हो गई। सो द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिमेन अनचेंज बिकॉज एन एक्सप्लेनेशन दी उसने कि भाई क्यों, बिकॉज नाउ दिस टेबल इज डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, not on the atomic mass, and as the atomic number of nickel is more than that of the cobalt, so it was placed after cobalt. And same with the case of iodine and tellurium. Clear? So in this way, all these three drawbacks of Mendes were overcome, or were, you can say, corrected in modern periodic table. तो इस तरीके से मॉडर्न periodic table के अंदर जितने भी हमारे पास मैंडलीव के डाउट से पोजीशन में गड़बड़ थी, वो सारी की सारी चीजों को ठीक कर दिया गया। ठीक है। सो मॉडर्न periodic टेबल के अंदर आपको यही सब चीजें पढ़नी है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। मैंडीफ वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ना है periodicity क्या होती है, कॉज ऑफ periodicity क्या होती है, ठीक है। देन मॉडर्न periodic लॉ क्या होता है, ये प्रॉब्लम, ये चीज, बस इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बस इतना ही आपको पढ़ना है जितना मैंने बताया। फटाफट अपना वीडियो को पॉज करिए, जो जो नोट्स हैं उनको नोट्स बनाइए और अपना काम करिए। ओके, सो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न periodic टेबल्स के अंदर जो ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ये ट्रेंड से periodic प्रॉपर्टीज है, ये किस तरीके से आती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं।